topological space X if and only if for every open set U f of x, a open set which is containing f of x, there exists a open set Vx where Vx is an open set containing the point x such that Vx is subset of inverse image of U f of x. In other words, we can say that f of Vx is subset of U f of x. अगर हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन है x से y में, हम कहेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एक पॉइंट x पे अगर कोई भी ओपन सेट जो कि कंटेन करता है f ऑफ x को, f ऑफ x पॉइंट है टोपोलॉजिकल स्पेस y का, तो कोई भी ओपन सेट जो f ऑफ x को कंटेन करता है उसके लिए हमारे पास एक ओपन सेट होना चाहिए Vx of topological space X such that this Vx is subset of inverse image of the open set UF of X. अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूस है एट अ पॉइंट X पे। अगर किसी भी पॉइंट पे हमें ये शो करना है कि इस पॉइंट पे फंक्शन जो है हमारा कॉन्टिन्यूस है, तो हमें उसके लिए क्या शो करना होगा या उसके लिए हमें क्या स्टेप्स जो हैं वो चेक करने होंगे कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट एक्स पे चेक करने के लिए। सबसे पहले हमने एक पॉइंट लिया एफ ऑफ एक्स। सेकेंडली हमने ऐसे तमाम ओपन सबसेट लेने हैं टोपोलॉजिकल स्पेस वाई में जो कि इस पॉइंट एफ ऑफ एक्स को कंटेन करते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स हो जाएगी इन तमाम ओपन सेट्स की जिन्होंने पॉइंट एफ ऑफ एक्स को कंटेन किया हुआ है। और एट द एंड हमें ये प्रूव करना है कि इस ओपन सेट का कोई भी हम पॉइंट ले लें उसके लिए हमें एक पॉइंट वी एक्स ऐसा मिलेगा सच डैट इनवर्स इमेज ऑफ दिस पॉइंट यू एफ ऑफ एक्स जो है उसके लिए हमें एक पॉइंट वी एक्स मिलेगा टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स में से सच डैट वी एक्स इज सबसेट ऑफ इनवर्स इमेज ऑफ द पॉइंट यू एफ ऑफ एक्स। Let's see some examples to understand the continuity at a point. Which steps we have need to perform to check the continuity of a point of topological space X. We consider an example in which topological space X have 4 points A, B, C and D. With topology defined on X have the elements empty set, the singleton set A, the singleton set B, the element AB, the element BCD and topological space whole space X. Another topological space Y also have 4 points 1, 2, 3 and 4. With the topology defined on Y have elements empty set phi, the singleton 2, the element 1, 2, the element 2, 3, 4 and the whole space Y. Let we define a function from topological space X to topological space Y such that under this function A maps to 3, B maps to 4, C maps to 2 and D maps to 3. If we claim this function is continuous at point A, then we have to perform the steps which we define above. According to the first step to check the continuity at a point, if we say the function f is continuous at point A, then what is the image of f of A? The image of f of A under this function is 3. So f of A is equal to 3.
Then we have to set the collection of all the open sets containing 3. Then U3 is belongs to the topological space tau y, and the collection of U3 have the two elements of tau y, the element 2, 3, 4 and the whole space y. These two elements contain the point 3. Now we check the inverse image of these two elements of U3 is equal to whole topological space X, and we know that if the inverse image of the element 2, 3, 4 is equal to X and the inverse image of the topological space Y is also equal to topological space X, and we know that the topological space X is always open in X. So for the each element of A belongs to tau, for each element of U3 there exists a element VA belongs to tau X such that this VA is subset of F inverse of U3, as we know that F inverse of U3 is equal to topological space X. So U3 के हर एलिमेंट के लिए जब हम इन्वर्स इमेज फाइंड करते हैं तो वो इक्वल आता है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का, और हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस टा एक्स में भी एलिमेंट एक्स है, एक्स सबसेट है इटसेल्फ एक्स का, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूस है एट पॉइंट ए. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द concept of continuity at a point, we must have to understand a counter example. We have to find out a point where function is not continuous. If we claim that the function f is not continuous at point C, now we have to show that why this function is not continuous at point C. We know that first of all we have to find the image of C under the function f. The image of C under the function f is equal to 2. F of C is equal to 2. And U2 have the elements the singleton 2, the set AB, the set 1, 2, the set 2, 3, 4 and the whole topological space Y. हमने U2 में वो तमाम एलिमेंट्स ले लिए हैं टोपोलॉजिकल स्पेस Y के जो टा वाई से भी बिलोंग करते हैं और उन्होंने पॉइंट 2 को भी कंटेन किया हुआ है. तो U2 के कौन से एलिमेंट्स हैं? सिंगलटन 2, द एलिमेंट 1, 2, द एलिमेंट 2, 3, 4 एंड टोपोलॉजिकल स्पेस Y. And we know that the inverse image of U2 is equal to singleton C, as the inverse image of the singleton set 2 is equal to C. अगर हम U2 का जो पहला एलिमेंट है सिंगलटन 2 उसका इन्वर्स इमेज लें तो वो इक्वल आएगा सिंगलटन C के. लेकिन हमें टा एक्स में ऐसा कोई ओपन सबसेट नहीं मिलता एक्स का जो कि सबसेट हो सिंगलटन C का, बिकॉज टा एक्स हैव एलिमेंट्स सिंगलटन A, सिंगलटन B, द एलिमेंट AB, द एलिमेंट B, C, D एंड द होल स्पेस एक्स. टा एक्स में हमारे पास सिर्फ ये एलिमेंट्स हैं. यहाँ कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि हमें ये दे सके कि कोई ओपन सबसेट है जिसका सबसेट हो सिंगलटन C का. कोई भी ऐसा ओपन सेट हमें नहीं मिल रहा जो कि सबसेट हो जाए सिंगलटन C का टा एक्स में. तो U2 के एक ऐसा एलिमेंट हमें सिंगलटन 2 मिल गया जिसका इन्वर्स इमेज है सिंगलटन C, और जिसके लिए हमारे पास कोई ऐसा ओपन सेट VC नहीं मिल रहा टा एक्स में such that VC is subset of singleton C. So we can say that this function f is not continuous at point C. Now we have to discuss the relationship between continuity at every point with continuous function. A function is said to be continuous if it is continuous at every point of topological space X. A very important theorem statement is a function f from topological space X to Y is continuous if and only if it is continuous at every point of
topological space X. So in this theorem proof, we have to show that if function is continuous, then function is continuous at every point of X, and if it is continuous at every point of X, then it must be a continuous function. Let us start the proof of this theorem with supposition. We consider the function f from topological space to X to Y is continuous. We have to show that this function is continuous at every point of X. To show that the function is continuous at every point of the domain, we choose an arbitrary point of topological space X. Let X be a point, small x belongs to topological space X. To show that f is continuous at this point X, for this, first of all, we have to check the image of the point X. We have to show that for every open subset of Y containing the image of the point X, there exists an open subset of topological space X containing this point X, such that a open subset of X must contain the inverse image of the open subset of Y containing the f of X. I know it's very difficult to अंडरस्टैंड. हमने क्या किया कि हमने एक पॉइंट लिया, आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स में. हम हर पॉइंट के लिए तो नहीं शो करेंगे ना. हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए अगर हम ये शो कर दें कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे, तो वो क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूस होगा हर पॉइंट पे. तो हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट स्मॉल एक्स ले लिया है टोपोलॉजिकल स्पेस में से. अब हमने शो करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इस स्मॉल एक्स पे. तो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट हमने सबसे पहले इसका इमेज फाइंड आउट करना है. हम कहते हैं इसका इमेज है एफ ऑफ एक्स. तो कोई भी ओपन सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस वाई विच कंटेनिंग द पॉइंट एफ ऑफ एक्स, द इनवर्स इमेज ऑफ दिस ओपन सबसेट, देयर मस्ट एक्सिस्ट अ ओपन सबसेट इन टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स which contain this inverse image of open subset of y which containing the point f of x. हमारी यही डेफिनेशन थी कि कोई भी पॉइंट जो है वो कॉन्टिन्यूस, किसी भी पॉइंट पे जो है फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा कि हमने सबसे पहले उसका इमेज फाइंड आउट करना है. उसके इमेज के वो ओपन सबसेट्स लेने हैं जो उसको कंटेन करते हैं y में. अब y के वो ओपन सबसेट जिन्होंने इस इमेज f of x को कंटेन किया हुआ है, उनके इन्वर्स इमेज के लिए हमें एक ओपन सबसेट मिलेगा टा एक्स में जो कि इस इनवर्स इमेज को कंटेन करता होगा. ठीक है. तो अगर हम ये तमाम चीज़ें जो हैं ये शो कर दें तो हम कहेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इस पॉइंट के ऊपर. अब हमें पता है कि हमारे पास सबसे पहले हमने क्या लेने हैं, ओपन सबसेट लेने हैं टोपोलॉजिकल स्पेस वाई के जिन्होंने कंटेन किया है एफ ऑफ एक्स को. कहते हैं कि हमारे पास ओपन सेट है यू एफ ऑफ एक्स जो कि बिलोंग करता है टा वाई से, जिसने कंटेन किया है पॉइंट एफ ऑफ एक्स को. अब हमें पता है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, और यू एफ ऑफ एक्स एक ओपन सेट है टा वाई का. तो उसका इन्वर्स इमेज यकीनन ओपन होगा टा एक्स में. सो द इन्वर्स इमेज ऑफ द ओपन सेट यू एफ ऑफ एक्स इज ओपन इन टा एक्स. अब इन्वर्स इमेज जो है ओपन सेट यू एफ एक्स का वो ओपन है. हम कहते हैं कि वो अगर ओपन है तो हम उसको कह देते हैं वो इक्वल है सम वी एक्स के. तो दिस वी एक्स जो है वो सबसेट है इन्वर्स इमेज ऑफ दिस ओपन सेट. तो अगर हमारे पास इस तरह से किसी भी पॉइंट के लिए अगर हम शो कर देते हैं कि हम कोई भी ओपन सेट लेते हैं जो कंटेन करता है एक पॉइंट एफ ऑफ एक्स को और उसका इन्वर्स इमेज भी ओपन है, तो हमें हर ओपन सेट के लिए भी एक पॉइंट होगा टा वाई में जिसके इन्वर्स इमेज भी ओपन होगा टा एक्स में. तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है
एट पॉइंट एक्स पे। अब हमने इसका कन्वर्स देखना है। कन्वर्स में हमने ये एक्सपोज करने हैं कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है हर पॉइंट पे, और हमने शो करना है कि वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। सपोज दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट। So for all point of x belongs to topological space X, that exists a collection of open subsets of tau y, say u f of x, there must exist a open set Vx in tau x such that the inverse image is superset of Vx। अगर हमें हर ओपन सबसेट ऑफ यू एफ ऑफ एक्स के लिए एक वी एक्स मिल जाता है टा एक्स में, क्योंकि हमें क्या सपोज किया है हमने कि एफ क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एवरी पॉइंट ऑफ एक्स का। अगर हर पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूस है तो ये जो हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन है इसको ये सेटिस्फाई करता है। तो हम ये जो इन्वर्स इमेज है यू एफ ऑफ एक्स को हम यूनियन में लिख सकते हैं वी एक्स के, क्योंकि वी एक्स ऐसा सेट है जिसने इन्वर्स इमेज को कंटेन किया हुआ है। तो ऐसे तमाम वी एक्स को अगर हम ले लें तो हमारे पास एक यूनियन की फॉर्म बन जाएगी कि हर इन्वर्स इमेज ऑफ यू एफ ऑफ एक्स के लिए, क्योंकि यू एफ ऑफ एक्स क्या है, हमारे पास कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स है जिसने कंटेन किया हुआ है एफ ऑफ एक्स को। और ये जो कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स हैं ये किससे बिलोंग करते हैं, टा वाई से। तो इनका इन्वर्स इमेज को हम यूनियन ऑफ दीज ओपन सेट्स वी एक्स के यूनियन में लिख सकते हैं। अगर इन्वर्स इमेज ऑफ यू ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ सच वी एक्स, तो हम लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ यू एफ ऑफ एक्स इक्वल है यूनियन ऑफ वी पी, और वेयर पी इज़ बिलोंग टू, पी क्या है, हमारे पास एक पॉइंट है जो बिलोंग करता है एफ इनवर्स ऑफ यू एफ ऑफ एक्स के। क्योंकि हमने कहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है हर पॉइंट पे। अगर हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है तो हर पॉइंट के लिए जो हमें ओपन सेट मिलता है टा वाई में उसका जो इन्वर्स इमेज है उसके लिए हमें एक वी एक्स मिलता है टा एक्स में। तो हम इस एफ इनवर्स ऑफ यू एफ ऑफ एक्स को यूनियन में लिख सकते हैं ऐसे तमाम वी एक्स के। तो हमने यहाँ पे कह दिया है कि इन्वर्स इमेज ऑफ यू ऑफ एक्स यूनियन है तमाम ऐसे वी पी का, वेयर पी क्या है, एक स्पेसिफिक कोई भी पॉइंट जो हम लेते हैं जाएंगे एफ इनवर्स ऑफ यू एफ ऑफ एक्स में से, उसके लिए हमें एक वी भी मिलता जाएगा। और इन सब का यूनियन जो होगा वो इन्वर्स इमेज ऑफ यू एफ एक्स के इक्वल होगा। और हमें पता है कि टोपोलॉजी क्या है। टोपोलॉजी क्या होती है, एक ऐसी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है जिसमें आर्बिट्रेरी यूनियन क्या होता है, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन होता है। तो ये जो हमारे पास यूनियन है ये भी क्या होगा, ओपन होगा एक्स में। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन एफ क्या है, कॉन्टिन्यूस है फ्रॉम टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टू टोपोलॉजिकल स्पेस वाई।